ठीक है. So matrices matrices. So here we want to find the inverse. Before starting with inverse, you have to first study a singular matrix. What is singular matrix? Suppose we have a determinant A. If I'll find its determinant, we have a matrix A. If I'm finding its determinant, if it comes zero, then it is called a singular matrix. And if determinant of a matrix does not come zero, then it is called as non-singular matrix. Non-singular matrix. I'll start with the exercise so it will be more clear. Exercise 2H. डियर पढ़ो क्या लिख के दिया फर्स्ट. So that A is a singular matrix. If So that A is a singular matrix if. So that A is a singular matrix if. First A 3 6 2 4. So मुझे अगर A singular matrix proof करा दो, what I am going to do, I will find its determinant, and if it is 0, so it is a singular matrix. Now find its determinant. क्या होगा बोलो? 2 by 2 का determinant कैसे निकालते हैं? 3 into 4 minus 6 into 2. 12 minus 12, 0. It means A is a singular matrix, correct? हाँ. मतलब हाँ. Okay. Second, it's a third order. Third order determinant, you know how to solve. Tell me the steps. I am going to find determinant. Wait. Just I'll just write the numbers. Determinant. Yes. Tell me. 1. So it's A1 minus 1 plus 3. Okay. When I'm writing 1, it will be 2 6. क्या हुआ? तो एक सर फिर हम लोग वो कब करते हैं जब हम वो वैसा लिखते हैं A11 A12 When वो they भी ask, डिटर्मिनेंट के लिए होता है ना? हाँ नहीं. When they ask us to calculate co-factor निकालने के लिए बोलेंगे तो करते हैं वैसा, या एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेंगे तो वैसा. ठीक है. हाँ. ये तो मैं सिर्फ पूरा डिटरमिनेंट निकालो, पूरा मैट्रिक्स का. इवैल्यूएट दिस. ठीक है. तो 2 plus 18 20. 2 minus 12 6 4 10 into 3 30. 2 minus 12 minus 10, sorry. तो 20 plus 10 minus 30 कितना हो गया? 0. अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो A is a singular matrix. मतलब से अगर 0 के अलावा कुछ भी नंबर आता है नॉन सिंगुलर है. 0 0 0. 0 minus 8. 0 minus 4.
4 minus of minus 1. So it is 0 minus 8 minus 8 times of x. 0 minus 4, but 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा. 4 minus minus plus 1. 4 plus 1 5. Correct? So finally minus 8x plus 5 equal to 0. तो 5 is equal to 8x. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5/8. तो जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली सॉल्व कर सकती हो. देख लो एक बार. इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब बस तुम्हें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. ठीक है. ओके. थर्ड क्वेश्चन रीड करो. थर्ड पढ़ो. For each of the following matrices, determine whether the inverse exists. If exists, find it. ओके. तो अभी यहाँ पे तुम्हें इनवर्स निकालना है. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. Inverse of a matrix, that is you have to find a raised to -1. This is called as a inverse, and the formula is a inverse is equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a. Adjoint of a already मैंने last exercise में सिखाया था how to find adjoint. ठीक है. So there is a formula for a inverse. What is the formula? 1 upon determinant of a into adjoint of a. Is this clear to you? Yes. ओके. 1/, लेकिन इसके लिए कंडीशन है. कंडीशन ये है कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए तो ही सॉल्व करेंगे. अगर 0 हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो कंडीशन क्या है बताओ. कंडीशन क्या है? टू फाइंड इनवर्स, दैट मैट्रिक्स मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ओनली इनवर्स कैन एग्जिस्ट. करेक्ट. सो इन द थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले फॉर्मूला रीड कर लो और अच्छे से समझ लो इसको, ये यूज करने वाला हूं मैं. So whenever they are asking A inverse निकालने के लिए, it's 1 upon determinant of A into adjoint of A. ठीक है. Okay. Third question, for each of the following matrices determine whether the inverse exists. If it exists, find it. Now tell me, first क्या लिख के दिया है? 1. इनवर्स मैट्रिक्स का होगा ही ना. क्या हुआ? फाइंड करेंगे तो इनवर्स सब मैट्रिसेस का होगा ना. जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा उसका इनवर्स नहीं आता. बस जैसे भी ये मैट्रिक्स दिया है, आई विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. क्या आएगा? 1 into 1. मतलब 0 ही. Any doubts? No, sir. Now I'm doing fifth question. Now you tell me how will I start and how will I go. A. 2 minus 6 minus 1 3. First we'll check finding its determinant. Answer? 6 minus 6 0. Oh, तो नहीं होगा ना सर. नहीं, A inverse do not exist. ठीक है. Sixth. 2 6 1 1. Tell me. So पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. 2 minus 6 तो डिटर्मिनेंट -4. फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे. Yes. तो एडजॉइंट पहले कोफैक्टर. हाँ. A11 equal to 6. अरे
minus plus. Tell me the values, slant value. 1 1 नहीं हाँ 1 1 2 6 2 So it will be 1 matrix form. तो 1 minus 6 2 फिर इन ट्रांसपोज करेंगे Then we'll do transpose. 1 minus 6 minus 1 2 Last, finally, inverse, which is 1 upon determinant of A. So that is 1 upon determinant of A. Adjoint. Done. It is minus 1 upon 4. Any doubts? Or else you can put minus inside. Minus. Keep 1/4 outside only. Minus inside. So then sign will get changed. Done. ठीक है? Hello. हाँ सर फोर्थ में क्या बोला? फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो इसका मतलब ये पता है कि ये तुम्हारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ठीक है, तो हो जाएगा फोर्थ का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. 3 क्वेश्चन है सेम वे में. हाँ सर थर्ड कर दूं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला? थर्ड cos तो हो मतलब सेम ही है ना उसका Cos- वैल्यू 1 नहीं तो sin cos हाँ 1 आ जाएगा और बाद में प्लस माइनस का साइन एडजस्ट करना है जो भी है बस. ठीक है, हाँ फिफ्थ बोलो. फिफ्थ if a is this then Find a calculate the square. value of a तो सर मतलब वही नॉर्मल का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ना a इंटू ए. यस, और फिर जो आंसर आएगा हाँ उसका इनवर्स निकालना है. उसका इनवर्स अच्छा हाँ वही हाँ जैसा सर मैंने हो बताया. जाएगा ठीक है, हाँ सर फिर फाइंड द सम ऑफ दिस एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो ये तो मैट्रिक्स है ही, इसका इनवर्स निकाल सकती हो हाँ तुम. इनवर्स जैसा मैंने बताया. हाँ और फिर दोनों का सम हाँ निकालना है, मतलब a प्लस ए इनवर्स दोनों का सम निकालना, ऐड करना है, बस हो जाएगा. हाँ सर ठीक है, 6th क्वेश्चन देखो. फाइंड अ मैट्रिक्स x हाँ हेलो. हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 6th क्वेश्चन. हाँ सर एक मिनट. हाँ, सिक्स से पहले मैं 7th करूंगा फिर 6 बताऊंगा, बिकॉज 6 और 8 सिमिलर है. पहले 7th क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिख के दिया. 7th रीड करो. find the inverse of the following matrices and verify the result वेरीफाई द रिजल्ट. रिजल्ट क्या है इसमें? एंड वेरीफाई योर रिजल्ट. अच्छा, वेरीफाई करना है रिजल्ट को. तो तुम एक शॉर्टकट वे बताओ इनवर्स निकालने का डियर, जिससे तुम चेक कर सकते कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. तो मेथड ये है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालना है, इनवर्स. तो रूल ये है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट आई सेड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, ए और डी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का पोजीशन चेंज करना है। यहाँ पे डी आएगा, वहां पर ए आएगा, क्या मैं, और बाकी दो का साइन चेंज करना है, माइनस बी और माइनस सी, मतलब बी सी पोजिशन वही रहेगा लेकिन साइन अपोजिट कर देना है बाकी दो का। आर यू क्लियर विद दिस? सर ये क्या, ये एडजॉइंट, ये इनवर्स हो गया। हाँ तो ये डायरेक्टली मैंने एडजॉइंट डायरेक्टली मतलब वे निकाल दिया, मतलब पूरा मेथड करने से अच्छा मैट को फैक्टर निकालो, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, ये डायरेक्ट वे है। पहले और जॉइंट लास्ट, का। हाँ एडजॉइंट का फर्स्ट और लास्ट का पोजीशन चेंज कर दो और बाकी दो का साइन चेंज कर दो। स्टार्ट कर, एक ओके। सम देख ले। हाँ 7 बोलो। 2 5, 2 5। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विल फाइंड इट्स डिटरमिनेंट कि इनवर्स है कि नहीं। 2 17 आया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो क्या होगा इसका बताओ। तो सर पहले 1 अपॉन नहीं नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ नहीं ए। नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं, अरे भाई पहले पूरा करो तो सही मेथड। एडजॉइंट निकालेंगे पहले, अरे एडजॉइंट को फैक्टर, शॉर्टकट नहीं, एडजॉइंट का तो शॉर्टकट नहीं पूरा, वो तो अरे वेरी, सर फिर पता अरे वो वेरीफाई करेंगे पहले, पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। A11 A12 सर 1 A21, माइनस 5 3 2। अरे पूरा तो सॉल्व क्या करना है। अभी A11 को टाइम भी बच। प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन तो लगेगा ही, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2, तो दिस इज 1 3 -5 और 2। फिर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, 1 माइनस 5 1 3 2 3 -5 2, और इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ट्रांसपोज 1 माइनस 5 3 2। हाँ 3 और 2, और शायद इन डायरेक्टली आंसर ए इनवर्स क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, बराबर ना। अब शॉर्टकट हाँ वे से करेंगे तो मैंने क्या बताया बताओ, अगर वेरीफाई करना हो ए इनवर्स इज इक्वल तो टू 1 अपॉन 17, पहले इन दोनों का पोजीशन चेंज 2 और 1 का, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और बाकी दोनों का सिर्फ साइन चेंज, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव जो नेगेटिव, तो ये मेरा आंसर देखो, ये आंसर सेम है क्या, हाँ ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट रहेगा, ठीक है। अभी 6 जो है बाकी सब सम के जैसे ही सेम, 6 और 8 और सब अभी सेम टाइप का ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे तुम्हें एक चीज बतानी है। देखो यहाँ पे 6 से पहले मैं तुम्हें 8 ही बता दे रहा हूँ। शैल आई स्टार्ट? हाँ सर। देखो मुझे एक चीज बताओ ना, इफ सपोज मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। हाँ सर। एक्स का आंसर क्या आएगा? 2 माइनस कर दिया। सिमिलरली अगर यही a प्लस बी बोलो, a प्लस एक्स इक्वल टू बी, तो बताओ x की वैल्यू क्या मिलेगी? b माइनस a। b माइनस ए, तो मतलब इजीली वी कैन कैलकुलेट, बराबर, Yes, sir. इजीली वी कैन Yes, sir.
कैलकुलेट। बट अगर मैंने बोला 3 इंटू एक्स इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? अपॉन में चला जाएगा ना? हेलो? हेलो। हाँ, 3 अगर मल्टीप्लाई करा वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, बराबर। हाँ सर। लेकिन अगर यही चीज अगर समझो कि मैट्रिक्स में बोलूं, सपोज ए मैट्रिक्स है और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, मुझे बी दिया हुआ, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा बताओ? तो x b अपॉन a इक्वल बट टू b अपॉन a। मैट्रिक्स में अपॉन तो होता ही नहीं है। मैंने कभी तुम्हें डिवाइड सिखाया ही नहीं मैट्रिक्स में। मैंने तुम्हें एडिशन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया, सब्ट्रैक्शन सिखाया, लेकिन डिवाइड अभी तक सिखाएगा किसी दो मैट्रिक्स का डिवाइड कैसे करते हैं? नहीं। तो यहाँ पे फिर स्टार्ट कैसे करेंगे और एल्स सॉल्व कैसे करेंगे? तो रूल ये है, जब भी मैट्रिक्स अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और अगर जब तुम उसको ट्रांसफर करोगी तो वो इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवर्स। तो अगर बेसिकली ए एक्स इक्वल टू बी है तो अगर तुम ए को वहां ट्रांसफर करोगी तो इट विल बी ए इनवर्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट और दिस पॉइंट? यस सर। तो कभी भी ए ट्रांसफर होगा तो इनवर्स, बट उसका एक रूल है। रूल है मैं बता रहा हूँ। अगर समझ मैंने एक्स ए इक्वल टू बी लिखा, मतलब ए पहले ने ए बाद में लिखा, तो अगर एक्स निकालना तो ए जब ट्रांसफर होगा तो भी बाद में ही होगा। तो रूल है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि ए का पोजीशन है कहाँ पे। अगर ए पहले है, व्हाट आई सेड, पहले, तो जब ट्रांसफर होगा तो पहले ही लेटर आएगा, मतलब पहला है तो फर्स्ट ही जाएगा इनवर्स बन के। लेकिन अगर ए सेकेंड लेटर है तो जब इनवर्स बनेगा तो सेकेंड लेटर बनेगा बी के आगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ध्यान दो। समझ में मैंने क्या बताया? अगर ए हाँ स्टार्टिंग का ही है तो जब ट्रांसफर होगा तो स्टार्टिंग में ही रहेगा इनवर्स बन के। लेकिन ए अगर सेकेंड लेटर है, एक्स के आगे है, तो जब ट्रांसफर होगा तो सेकेंड लेटर ही रहेगा, लेकिन इनवर्स हो जाएगा, बस वही, बराबर। हाँ ओके, सो शैल वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। एट सर। का फर्स्ट बोलो जरा। Find 2 into 2 matrix M such that this into M equals to इंटू एम। मुझे एम फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, हम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एम फाइंड आउट करना है। सपोज मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को ए ले रहा हूँ, सेकंड मैट्रिक्स को बी ले रहा हूँ, तो मतलब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एम सॉरी ए एम इज इक्वल टू बी, करेक्ट? क्या मैंने बोला? AM equals to ए एम इज इक्वल टू बी, तो बताओ एम की वैल्यू क्या मिलेगी? ए B वहां upon ट्रांसफर हो, A. अरे अपॉन नहीं होता, अच्छा सॉरी। ए फर्स्ट लेटर है। B A B A inverse B. हाँ, अरे ए बी क्या हो, इट्स ए इनवर्स बी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर तुम्हें एम फाइंड आउट करना मतलब ए इनवर्स इनटू बी, मतलब ए का इनवर्स विल मल्टीप्लाई विद बी। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग ए का इनवर्स। बताओ मैट्रिक्स का। अब चाहो तो तुम शॉर्टकट वे यूज कर सकती हो, यहाँ पे Oh. चलेगा। क्यों यहाँ पे चलेगा? यहाँ पे मुझे सिर्फ इनवर्स चाहिए। अगर क्वेश्चन बोलता फाइंड ए इनवर्स अगर, तो पूरा मेथड करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कहीं मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकती हूँ। तो फॉर्मूला क्या बताओ? The 5 determinant 5 तो ये 5 आ जाएगा। और मेथड in ये है, ये दोनों का has पोजीशन चेंज। -7 -15 अरे भाई तुम तो -2। एक साथ सब कर लेती हो। पहले मैं बोला इन दोनों का मैं पोजीशन चेंज, और बाकी दो का मैं तो सिर्फ साइन चेंज। मैं तो लाइन में ही बोल रही थी -7 -2। तुम 15 बोली थी बीच में। अच्छा, ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ -7 -2 -15 और -5। तो ये मैं चाहो तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही माइनस अंदर है। तो -1 ठीक है। अपॉन 5 कितना आंसर आया?
7 2 15 और 5। चलो ये मेरा ए इनवर्स आ गया। चलो सब्स्टिट्यूट करो, मुझे एम फाइंड आउट करना है। एम फाइंड आउट करना है मतलब ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स मैंने निकाला ना जस्ट नाउ अभी, हाँ -1/15, 7 2 15 और 5। और बी की वैल्यू क्या है बोलो डियर? हम्म, ये है ना बी की वैल्यू। हाँ चलो मल्टीप्लाई करो, रो इंटू कॉलम। हाँ। क्या होगा? 7 into 5 to 0 plus 7 into 0 plus 2 into 5, फिर 15 into 5 plus 5 into 0, 15 into 0 plus 5 into 5, बोलो। 35 0 75 25, फिर तो बाहर 50 1/25 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 15 का मल्टीप्लाई कर दो। 7/3, 2/3, 1/5। 5। ओ हाँ, नहीं ओके। 15 5 से 75। हाँ और ये -5/3। करेक्ट। हाँ सर। तो ये समझ में मैंने क्या किया, तो ये मुझे एम की वैल्यू मिल गई। तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट। एक बार देख लो पूरा मैंने स्टेप्स क्या किया है। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। जैसा मैंने 8 किया, सेकंड हो जाएगा सेम वे में। हाँ तो मतलब n सेकंड लेटर, उसको a ले लेंगे और इसको b, दैट इज n a इक्वल टू b। तो बताओ जब n a को ट्रांसफर करेंगे तो n की वैल्यू क्या मिलेगी? एन की वैल्यू n a इक्वल टू b है, मतलब ऐसा है n तो एन a, इक्वल्स पी ए इनवर्स। तो b a नहीं, इनवर्स। यस यस यस, सेकंड लेटर है ना, तो जाएगा भी तो सेकंड लेटर ही बनेगा, सेकंड लेटर है। तो जब जाएगा तो मैं इनवर्स पहले से निकाल लेना शॉर्टकट वे से, फिर b से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। करेक्ट। हाँ फिर 9th क्वेश्चन। तो और कितने बचे वो? ज्यादा तो नहीं है। बहुत सारे सर। आज कहाँ तक करेंगे हम लोग? 9। तब फिर कल भी रखूंगा सेशन। हाँ ठीक है सर। ठीक है, 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलो। uh, 9th। 9th क्या दिया है? ए दिया है, शो दैट ए इनवर्स इज 1/19 a। तो आई विल फाइंड इट्स इनवर्स। बताओ इनवर्स क्या होगा, शॉर्टकट वे से निकालूंगा तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। इंटू तो बताओ डिटर्मिनेंट क्या होगा? -4 into 15, -4 -15 -19। -4 इंटू -15। ठीक है, बाद में कर लूंगा। और एडजॉइंट बोलो, पहले इन दोनों को जॉइंट चेंज और ये -2 दोनों का to साइन -3 चेंज। -। तो ये 1/-19 मतलब -1/19। करेक्ट। हाँ तो बाहर माइनस है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो 2 5 3 -2। अरे ये तो मेरा फिर से मैट्रिक्स ए बन गया। हाँ तो मतलब मेरा ए इनवर्स इज 1/19 टाइम्स ऑफ ए। डन। हाँ इजी। हाँ सर।